تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, تو چھوڑو کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے, ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے بھائی. میں ایک بچے سے ملا, حفظ قرآن تھا, حافظ تھا قرآن کا ماشاء اللہ. اس نے قرآن پر اتنی محنت کی ہے کہ اس سے جب آپ, اور ایسے بہت سے بچے ہیں کہ آپ کوئی آیت پوچھو وہ فوراً آیت نمبر اور فوراً پارا نمبر, مکی ہے مدنی ہے, ایک ایک چیز فوراً بتائے گا. اس سے پچھلے والی آیت بھی بتائے گا, اس سے پچھلے والی. حافظ اگلی آیت تو آسانی سے بتا سکتا ہے, پچھلی آیت بتانا حافظ کے لیے مشکل, کیونکہ جب اگلی آیت تو جب وہ آپ تلاوت کریں گے اگلی خود زبان پہ آ جاتی ہے, پچھلی نہیں آتی عام طور پر. تو بڑی محنت کی گئی اس بچے کے اوپر. بچے کو میں نے انعام بھی دیا, اس کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بچے کا ٹائم دماغ لگایا گیا ہے نا, اس کا آؤٹ پٹ کوئی زیادہ بولیں نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے میں. کیونکہ قرآن اس طرح سے یاد کرنا کہ اس سے پہلی والی آیت بھی فوراً ذہن میں آ جائے, یہ بہت مشکل کام ہے. بچے کا بہت دماغ کا دہی کیا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب ضرورت پڑے گی کہ اس سے پچھلی آیت کیا ہے, بھائی قرآن ہے, گوگل ہے, لکھے پچھلی خود آ جائے گی سامنے اس کے. اتنی دماغ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک چیز پہ. ایک ایک آیت کا نمبر یاد کرنا, یا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کام کرنا ہے اور مناظر بننا ہے, تو چلیں جی فوراً آیت نمبر پیش کر دیا. لیکن اکثر علماء یہ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کو رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی تو آپ آیت پوری پڑھ کے پیش کر سکتے ہیں نا. دیکھو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی, کل نفس ذائقۃ الموت, میں نے حوالہ نمبر پیش, آیت نمبر پیش نہیں کیا, اس لیے کہ یہ آیت آپ گوگل پہ لکھیں گے 10 حوالے نکال کے گوگل آپ کے سامنے پیش کر دے گا. تو جو کام گوگل کر چکا ہے وہ ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہو, آپ وہ کام کرو نا جو نہیں ہو رہے. ہمارے یہاں بس کمال کو دیکھا جاتا ہے, یار کیا کمال ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا اس کمال کا آؤٹ پٹ کیا ہے, اس سے معاشرے کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسی چیز پہ دماغ آپ لگا رہے ہیں جس میں دماغ کھپ رہا ہے آپ کا, تو یہ آپ کسی اور چیز میں کھپا دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا اس کا. اب قرآن کسی نے یاد کر لیا الحمد سے لے کے والناس تک نارمل طریقے سے تو کافی ہے. وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے, وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے, وہ بیان بھی کر سکتا ہے, بیان میں آیتیں بھی کوٹ کر سکتا ہے, پوری پوری آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہے. لیکن اس میں اتنے حروف ہیں, اس آیت میں اتنے وقف ہیں, اور اس آیت میں اتنے فلاں موقع پر, اور اس سے پچھلی والی یہ, اور یہ لفظ قرآن میں 20 جگہ پر آیا ہے, اتنی دفعہ 20 جگہ پر آیا ہے, 25 جگہ پر آیا ہے, اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. محنت بہت زیادہ ہے, اور اگر اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہے بھی تو اتنی محنت میں اتنا تھوڑا فائدہ, یہ فائدہ نہیں کہلاتا. ہاں دنیا میں اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہ ہوتے پھر ہم دماغ کو اس پہ کھپاتے. جب اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اور بھی زیادہ ہیں تو ایسے ذہین ترین بچوں کی کھوپڑی ان کاموں میں لگانی چاہیے, کیونکہ ان بچوں کا حافظہ بہت تیز ہے, ذہانت بہت ہے. تو یہ حافظہ اور ذہانت ایسے کام میں لگانی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو, بہت زیادہ ہو, کیونکہ یہ ضرورت تو ویسے ہی پوری. اب دیکھو کوئی اپنے بچوں کو 335 کا پہاڑا یاد کراتا ہے, بولو نا بھائی 17 تک ہمیں پٹے ہیں, 16 تک مجھے چوتھی کلاس میں یاد ہو گئے تھے, 17ویں پہ آگے ہم پٹنا شروع ہو گئے. 17واں بہت مشکل ہے, 17 1 17 17 34 17 3 51, آگے نہیں آ رہا, 17 4 کیا اب تک نہیں پتا, سوچنا پڑے گا 17 4 کیا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ایسے ڈھیٹ کہ چوتھی سے پٹنا شروع ہوئے تھے, 17ویں پر اب تک یاد نہیں ہوا. کیوں؟ اگر میں یاد کرتا نا تو آج میں یہاں ممبر میں نہ بیٹھا ہوتا, میں پہاڑا یاد کر رہا ہوتا اب تک بیٹھ کے. پھر 18واں یاد کرتا, پھر 19واں یاد کرتا, پھر 20واں یاد کرتا, پھر 21واں یاد کرتا. کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں دماغ کو. یہاں جس کو 17 سے ضرب دے رہا ہوگا کالو کا لیٹر استعمال کرے گا. کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. کالو ہے نا, کلو کالے رنگ کے ہوتے ہیں نا, اس کا لیٹر استعمال کرے گا تو 17 ضرب 4 کیا خود ہی بتا دے گا وہ. ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی بولو ضرور. آج تک ہمارا کوئی کام کیلکولیشن کی وجہ سے رکا نہیں ہے. بھائی کھوپڑی کسی اور چیز میں استعمال کرو یار. بس کمال دیکھا جا رہا ہے آج کل. بھائی 358 کو 456 سے ضرب دو, یہ بتا دے گا فوراً کیا جواب ہے. ذہانت کی دلیل ہے. اگر کوئی بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا میتھ میں کہ 356 کو 458 سے فوراً ضرب دے کے بتا سکتا ہے, ذہانت کی دلیل تو ہے, بہت ذہین ہے, بہت حافظہ تیز ہے. لیکن یہ اس کی علامت بھی ہے, اس کا حافظہ ایسی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے جہاں اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. اس ایکسٹرا آرڈینری دماغ کو آپ کسی اور کام میں استعمال کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ذہانتیں, جسمانی قوتیں, صلاحیتیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں استعمال بولو نہیں کرنی. تو ہم جو 17 کے پہاڑے میں پٹنا شروع ہوئے, میں نے ایک بیان میں اپنی ٹیچر کا واقعہ سنایا تھا نا, جن نے 200 بیٹھکیں لگوائیں, اٹھک بیٹھک 200, 17 کے پہاڑے پہ تھا وہ.
टेबल 17 का। उर्दू में अलग याद करवाते थे, इंग्लिश में अलग याद करवाते थे। तो हमने ना उर्दू में याद किया ना इंग्लिश में। 9th क्लास में पिटे अल्हम्दुलिल्लाह। इस पिटने के बड़े फायदे हुए हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो दूसरी शादी करते हुए पिटे तो उसको तकलीफ नहीं होती, ये बड़ा फायदा है इसमें। जो मम्मी डैडी वाले लोग हैं वो नहीं हो सकते, वो पिटने के आदी नहीं है। तो पहले तो सब बच्चे स्कूलों में टीचर सख्ती करते थे, बहुत कोशिश की थी। आज इस टॉक लफ्ज नहीं लेकर आऊंगा मैं, लेकिन चलो चलता है यार। तो अब उन्होंने क्या किया, 9th क्लास में हमारे टीचर हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अल्लाह उन टीचर अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत दे, और अगर इंतकाल हो गया अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से टीचरों से राब्ते की कोशिश की है लेकिन हो नहीं रहा राब्ता, पता नहीं कौन कहाँ चला गया। तो वो हमें केमिस्ट्री में फार्मूले लिखे हुए होते हैं ना, H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और NH4Cl, ये सोडियम क्लोराइड और इस तरह के, तो भूल भी गए। हो सकता है वो नीचे लोग कह रहे थे सोडियम नहीं है भाई कुछ और है। अब छोड़ो यार, जो भी है, अभी बात को फोकस करो, बंदा क्या कह रहा है। तो वो सारे फार्मूले किताब में लिखे हुए थे। हमारे टीचर ने कहा कि कल सब तलबा अपनी अपनी कॉपी में लिख के लाएंगे इसको। मेरे पिटने की तैयारी बोलो शुरू हो। मैं सोच रहा था कि जब ये बुक में लिखे हुए हैं तो याद करना है तो यहीं से करो, कॉपी में लिखने की बोलो क्या हैंड राइटिंग सही करानी है तो 9th क्लास हैंड राइटिंग के लिए थोड़ी होती है। और वो तो यानी मतलब ये इसका कोई फलसफा खोपड़ी में आया नहीं। टीचर ने कहा और 10-12 सफ़ात थे, लिख के लाओ, लकीरें खींचो, स्केल से यूं करो कि लिखो। इतनी टेंशन के यार ये क्या काम है यार, इसका ना कोई सर ना पैर ना कोई तुक। नहीं लिखे हमने तो हम तो जो लिखने का काम था वो नहीं करते थे। जो जरूरी होता था उसमें 10 दफा सोचते थे। ये तो वैसे ही इस्लाम में हमारी एक राय थी कि इसका इस्लाम में क्या है, इसको तो अमली जिंदगी से कोई। अब टीचर्स भी तो बाज़ दफ़ा ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, वैसे ही तो नहीं लिखा हमने। अगले दिन वही हाथ ऐसे डंडे 2-4 दफ़ा डंडे खाए, फिर उन्हें बगैर कुर्सी के हवा में बिठा दिया हमको। आप थोड़ी देर बैठ के देखें तो आपको पता चलेगा, यानी बैठे हुए ऐसे हैं जैसे कुर्सी पे, लेकिन हकीकत में कुर्सी तशरीफ के नीचे नहीं है। थोड़ी देर आप बैठे, हम बहुत देर तक बैठे रहते थे इस तरीके से। तो उन्हीं दिनों में हमारे महल्ले से कुछ लोग मिलने के लिए आए स्कूल में कि देखें इस महल्ले के बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे स्टडी हो रही है। तो हमारे रिलेटिव थे कुछ, तो मैं और हमारे दोस्त हम दोनों बगैर कुर्सी के बैठे हुए थे, हाथ ऊपर करके। वो इसी कंडीशन में क्लास में दाखिल हुए हैं, इज्जत हो गई। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इज्जत हो गई। तो हम कहते थे आज हमारी महल्ले में बहुत इज्जत हो गई है। आपको पता है कराची में बेइज्जती को प्यार से इज्जत भी कहा जाता है। कराची में बेइज्जती को प्यार से क्या कहा जाता है, इज्जत, कि आज बहुत इज्जत हो गई है। जैसे गीबत को जिक्र खैर कहते हैं, आपका जिक्र खैर हो रहा था, मतलब क्या है, बुराई हो रही थी आपकी। तो ये तो मैं जो असल टॉपिक है वो लेके चलता हूँ। ये बात यहाँ आ गई है तो इसको 2-4 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ये भी एक अहम पॉइंट की बात है कि जब भी कोई काम लगा दे ना जिम्मे में, ये कुछ भी खोपड़ी में आ जाए तो करना ना शुरू कर दिया करो। हर काम से पहले आदमी 10 दफ़ा सोचे इसका फ़ायदा क्या है। बच्चों से भी वो काम करवाओ जिसका उनको फ़ायदा हो। अच्छा, बास कामों का फ़ायदा होता भी है, मेहनत बहुत है, फ़ायदा थोड़ा। देखो अल्लाह ने अगर हमें 10-15 ज़िंदगियाँ दी होती ना तो एक तजर्बे में गुजार, 2-4 ज़िंदगियाँ, हिंदू कहते हैं ना 7 जन्म है, तो अगर वाकई सच्ची मुच्ची में 7 जन्म ही होते तो 5-6 जन्म हम तजर्बे की भेंट चढ़ा देते, 7वें जन्म में काम करते हम। क्या ख्याल है? लेकिन जन्म इस्लाम क्या कहता है, कितने हैं, एक ही दफ़ा पैदा हुए हो, एक ही दफ़ा मरोगे। उसके बाद जब दोबारा पैदा होगे तो मरने के लिए नहीं बल्कि हिसाब व किताब के लिए। तो एक ही ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, तो ये तजर्बों की भेंट नहीं चढ़ा सकते कि 17 के पहाड़े और 18 के पहाड़े और टेबल बैठ के याद करें। 21 में 21 21 22 42, यही है ना। ये तो मैंने सोच के बता दिया, याद थोड़ी है। और एक हदफ बनाया करो अपनी जिंदगी का कि चाहते क्या हो। ये नहीं पता होता कि मैं जो एजुकेशन हासिल कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए, या कौम की खिदमत के लिए, या इज्जत के लिए। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हो पैसा कमाने के लिए तो भाई पैसा तो तालीम में कम है, बिजनेस में बोलो ज्यादा है। तो ये तो आपने फील्ड ही गलत चुनी है अपने लिए। क्या ख्याल? अभी देखो जिन्होंने कुर्बानी के बिजनेस किए, बछड़े ला ला के बेचे, इनमें अक्सर लोग क्वालिफाइड नहीं होते क्योंकि वो 3-piece सूट में बछड़ों के सामने खड़े नहीं होते। तो पैसा किसने कमाया बकरीद के दिनों में? जिन्होंने बिजनेस किया या जब ये किताब लेके पढ़ते रहे बैठ के?
یہ جو व्यापारी गांव देहातों से कट्टे लेकर आते हैं, इनके हाथ में किताब देखी कि फारिग वक्त में ये किताब पढ़ते हो बैठ के हैं भाई, और लाखों लाखों रुपए। मैं ऐसे ताजरों से मिला हूँ बकरीद के दिनों में। एक साहब थे, मुझे कहने लगे मैं सऊदी अरब में, इतनी अच्छी जॉब थी, एक दिन क्या हुआ है, मैं आया गाँव में 4-5 कट्टे बंधे हुए थे, मैं खरीद के कराची की मंडी में ला के किसी को पहना दिया मैंने। उन्होंने तो नहीं कहा पहना दिया, मेरी ताबीर है, ये ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो पहनाया जाता है। वो ला के मैंने 4-5 किसी को, कह रहे इतने नोट मेरे पास आ गए। मैंने कहा यार सऊदी अरब में तो मैं 6 महीने में इतने नहीं कमाता जितने यहाँ कमा रहा हूँ। तो कह रहे फिर मुझे अपने गाँव भी उन्होंने दिखाया, मैं उनका घर देखा, हर वक्त उनके घर में सहन में 5-6 4-5 कट्टे बंधे हुए होते हैं। कह रहे मेरा बिजनेस ही क्या है, 2 महीने 3 महीने सौराब गोट में जानवर बेचता हूं और 10 महीने बैठ के खाता हूं, मैं कुछ काम नहीं करता मैं। तो पैसा कौन कमा रहा है बोलो? वो तो वो ज्यादा कमा रहा है। हाँ, कुछ एजुकेशन ऐसी हैं जिनमें पैसा बहुत है, आप सीए कर लें अच्छी तनख्वाह होगी, लेकिन सीए करने जब सीए से फारिग होंगे तो आप बालों से भी, मैंने कोई सीए वाले के पूरे बाल अब तक जो मुझे मुशाहिदा हुए, जिसने सीए किया है उसके पूरे सर के बाल मुझे अभी तक नजर नहीं आए। तो इतनी हाई लेवल की एजुकेशन हो तो फिर तो चलो ठीक है, अच्छी खासी तनख्वाह हो जाएगी आपकी, लेकिन वो भी जब जाके होगी 30-35 लाख रुपए जाके, उस वक्त जब बहुत तजर्बा हो चुका होगा और कंपनियां आपके तजर्बे से आपको नचोड़ के करोड़ों रुपए कमा चुकी होंगी, तो आपको 30-35 लाख रुपए तनख्वाह देंगी और आप समझोगे माशाल्लाह काम क्या हो गया, हड़ो बच्चे हो गया। खैर, तो आप यानी हम खोपड़ी इस्तेमाल आम तौर पर हो नहीं रही है हमारी। मैं एजुकेशन की फजीलत का कायल हूं, ये मतलब नहीं है कि पढ़ना लिखना छोड़ दें, मेरा मतलब है कि पहले तय करें कि क्यों पढ़ रहा है। डॉक्टर बन रहा है अगर पैसे कमाने के लिए, कमा लेते हैं, लेकिन आम तौर पे नहीं कमा पाते, उसके लिए बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के डॉक्टर वो कमाते हैं। और हकीकत है कि वो भी बिजनेस करते तो ज्यादा कमा लेते हैं। वो अपना अस्पताल खोल के बिजनेस करें फिर कमाएंगे। अस्पताल के ओनर को देखो, कभी कुछ MBBS किया हुआ होता है उसने, फारिग होता है बेचारा अक्सर, तो सिग्नेचर भी कहीं से सीखे हुए होते हैं उसने। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है। तो एजुकेशन से मकसद इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए, फिर पढ़ने में मज़ा आएगा। समझते हो, मुस्लिम कौम को तरक्की देना मकसद हो, एजुकेशन की ज़रूरत है, पैसा इतना एजुकेशन में नहीं है। तो एजुकेशन, आप डॉक्टर बन रहे हो, इंसानियत की खिदमत करो, फिर दुआएं निकलेंगी लोगों के दिलों से और फिर जन्नत। अभी एक डॉक्टर से वास्ता पड़ा, बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने कहा यार आप तो अगर नीयत सही कर लो तो अल्लाह वैसे ही, अल्लाह से उम्मीद है कि आपके अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। इतनी खिदमत, इतना लोगों की जानें बचाना तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन डॉक्टर की नीयत आम तौर पर पैसा कमाना होती है, तो ना इधर का रहता है ना उधर का, और पैसा कमाने के लिए 2 नंबरियाँ करनी पड़ती हैं। अस्पतालों में देख लो ना, जो गायनी के हॉस्पिटल हैं, इनमें जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये क्या बनते थोड़ी हैं ये ऑपरेशन? बच्चे की विलादत के लिए जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तो ज़्यादातर गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, पैसा कमाने का धंधा है ये। इस पे तो हमारे पास इतने सबूत, इतने शवाहिद हैं कि अगर मैं पेश करना शुरू करूँगा सारा बयान इसी पर हो जाएगा। तो